नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से पूरी दुनिया में विश्व योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से मान्यता दिए जाने के बाद पहली बार साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी। योग दिवस के मौके पर संदेश यही होता है और हर तरफ ये पहुंचाने की कोशिश होती है कि योग से आप स्वस्थ रह सकते हैं और योग आपके मन और तन को सेहत रखने में पूरी तरह सहायक होता है। ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। नमस्ते, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज इंटरनेशनल योगा डे पे जो है हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं on the behalf of News India channel and NIMS University. So today we are going to do two practice. First loosening exercises and some yoga postures and pranayama. Then after we will perform the Surya Kriya Yoga for the immunity, for vitality and for the good strength for the body that we are going to perform. So shall we start? First of all, when we are going to perform any exercises, any physical activity, we have to do some loosening exercise. We says that the warm up, because this loosening exercise जो है आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, जिससे कि आपकी बॉडी में इंजरी ना हो, आप फ्लेक्सिबल रहें. When performing these exercise or yoga, you should little bit be flexible. So we are starting from sitting. Now open your legs in front of you and keep your hands at back side of the spine. Keep erect your spine. Am I visible to all of you? Right? First move the toes up and down. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Now rotate the ankles both sides, clockwise and anti-clockwise. What does happen? The joints हैं इन पे flexibility, blood circulations and mental awareness जो है increase होता है. In the next practice, you can bend your knee with the exhalation. With the inhalation, extend it. बैंड करें अपने लेग को सांस निकालते हुए, सांस लेते हुए सीधा करें 5 टाइम्स. 1, 2, 3, 4, 5. Now on the opposite leg, bend the knee. 1. As you bend, exhale completely. सांस बाहर निकाल दें. कमर सीधी रखें और रिलैक्स रखें कमर को. Bend the knee and extend it. सांस निकालते हुए मोड़ें, सांस लेते हुए सीधा कर दें. Yes. Now cross the leg, keep your heel on the thigh and move the hip up and down. Half butterfly pose you can perform for flexibility of the hip joint. Those who have pain in the knee, they should not bend too much. They can a little bit extend it of the leg. On the shine जो है leg को आगे रख सकते हैं, foot को जो है दूसरे leg पे आगे रख सकते हैं. Then they can perform little bit in the pain-free limit. Now you will repeat on the opposite side. Lift up and down to the half butterfly pose. While lifting and lower this. Lift up, lift up, lift up, lift up. Very good. Now you can give the rotations of the knee like this way. Hip rotation is taking place clockwise and then anti-clockwise.
then on opposite side. Clockwise and anti-clockwise. Now as you have done the flexibility exercises on the lower limb, legs पे आपने जो है flexibility exercises कर ली है, loosen up कर लिया है. Then after you can cross the legs, you can sit in this position, and now you will do for the arms and hands. Open the palms in front of you and make the fist with the exhalation. Now inhale and open up the palms completely. Now squeeze and exhale. So if you do not breathe, that is not yoga. Breathing and awareness make the differentiation. Exhale, now inhale. सांस लीजिए, सांस निकालिए. जैसे पाम खोलते हैं सांस लेना है, जैसे पाम बंद करते हैं मुट्ठी बनाते हैं, सांस को पूरा बाहर निकालना है. तो सांसों के साथ में जो है एक्सरसाइज को ऐड कर देना है. वेरी गुड. नाउ you up and down the fingers and hand. Inhale, सांस लेते हुए उठाएं, सांस निकालते हुए नीचे रखें. सांस लेते हुए उठाएं, सांस निकालते हुए नीचे रखें. सांस लेते हुए उठाएं, सांस निकालते हुए नीचे रखें. सांस लेते हुए उठाएं, सांस निकालते हुए नीचे रखें. Now you give the rotations, clockwise and anti-clockwise rotation of the wrist joint. Now opposite side. 4, 4, 5, 5 repetition is sufficient in the beginning. Now bending of the elbow. As you bend, जैसे आप मोड़ते हैं सांस बाहर निकाल दें, जैसे ही सांस लेते हैं सीधा कर दें. सांस निकालते हुए मोड़ें, सांस लेते हुए सीधा कर दें. 5 times you can perform. सांस निकाल दें पूरा, सांस लें. Very good. Now you can perform the shoulder rotations. सांस लेते हुए उठाएं, सांस निकालते हुए नीचे लेके जाएं. ये परफॉर्म करते वक्त आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, रिलैक्स होनी चाहिए, आंखें सामने. चिन शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड. जब आप उठा रहे हैं तो फ्रंट में दोनों जो आपके एल्बोज हैं वो जॉइन होनी चाहिए. आपके आर्म्स जो हैं कान के ईयर्स के पास में सट के जाना चाहिए और एक कंप्लीट रोल सर्कल बनना चाहिए. विदाउट डिस्कम्फर्ट एंड विदाउट पेन यू शुड परफॉर्म दिस द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज पोजिशन में. सो एज यू लिफ्ट, जैसे आपके हाथ ऊपर उठ रहे हैं, यू शुड इनहेल. एज द एल्बोज आर गोइंग डाउन यू शुड एक्सहेल. व्हाइल इनहेलेशन योर बेली शुड कम आउट. जब सांस लेते हैं तो आपके फेफड़े और जो एब्डोमेन पेट है वो बाहर फूलना चाहिए. जब आप सांस निकालते हैं तो आपके जो लंग्स हैं और आपका जो एब्डोमेन है वो अंदर की तरफ जाना चाहिए. परफॉर्म क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 5 repetitions. Very good. Now you have done the flexibility loosening exercises of lower limb and upper limb. आर्म्स की और हैंड्स की आपने कर ली. अब हम नेक्स्ट करते हैं गर्दन पे. सांस लेते हुए आप गर्दन को उठाएं आराम से, जहाँ तक उठा सकते हैं. सांस निकालते हुए आप आगे झुकें. जिन लोगों को आगे झुकने पे चक्कर आता है, गिडीनेस आता है, वो परफॉर्म ना करें. इनहेल करते हुए आप हेड रेज करें आराम से. एक्सहेल करते हुए आप हेड को डाउन करें. In the next, you should rotate one side to the neck like this way with the exhalation. Inhale and bring in the center. Now exhale, bring the neck in the center with the inhalation. Now exhale. Now inhale, bring the neck in the center. Now exhale.
bring the neck in the center. So this is the side rotation. Now side bending of the neck, like this way you can go directly for the right side shoulder. Bend the neck and head towards the right side shoulder with the exhalation. Come to the center with the inhalation. Now exhale, सांस निकालते हुए बाएं कंधे की तरफ आप अपनी गर्दन को झुकाएं, अपनी लिमिट में करें। तो ये करते वक्त क्या है, आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए, आपकी ईयर और शोल्डर एक लेवल पे एक लाइन में होने चाहिए, ये नहीं आगे जा रहा है। आपकी चिन शुड बी द पैरेलल। एक शोल्डर और ईयर का एक लाइन में होने का क्या मतलब है, अभी देखिए आप मेरा पोस्चर, मैंने गर्दन को आगे निकाल लिया, आगे झुका रहा हूँ, दैट इज़ द रॉन्ग। आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, आपकी शोल्डर और ईयर एक लाइन में होने चाहिए, बिकॉज रॉन्ग एंगल पे करने से आपको मैकेनिकल डिसएडवांटेज क्रिएट होते हैं, पेन एक्सर्शन हो सकता है, you injured your body. So posture should be very fine and smooth and should be in the right alignment while performing this. So this is the loosening exercise for the neck region. Now some loosening exercise and flexibility yogic exercises with breathing we will do in the standing position for the spine. We will stand up, get up. Tadasana that we are going to perform, in which you can interlock the fingers. You inhale, सांस लेते हुए अपने हाथों को छत की तरफ, आसमान की तरफ ऊपर उठाएं, अपनी कमर को सीधी रखें, आपके दोनों घुटने, आपके दोनों एडियाँ, एंकल, आपका हिप, आपका स्पाइन, आपके शोल्डर्स, आपके हैंड्स, आपका चिन, नेक एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। नाउ विद द इनहेलेशन स्ट्रेच अप, अपने बॉडी को आप बिकम द टॉलर, अपने आप को ऊपर आसमान की तरफ बिल्कुल सीधे रख के खींचिए, सांस निकालते हुए वापस हाथों को नीचे रखिए। ये बिगनर लेवल पे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। विद द इनहेलेशन सांस लेते हुए आप ऊपर उठाएं और अपने एंटायर बॉडी को जो है एक्सपेंड करें आसमान की तरफ, अपने बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, लेट इट गो, बिकम द टॉलर। अपने स्पाइन पे, अपने हिप पे, अपने लेग्स पे, नीज पर बिकम स्ट्रेच, ऊपर की तरफ स्ट्रेच होता हुआ फील करें, सांस निकालते हुए हाथों को नीचे रखें। यू कैन रिपीट 5 टाइम्स। स्ट्रेच अप, बिकम द टॉलर, बिकम द टॉलर, बिकम द टॉलर, कम डाउन। वेट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपके जो दोनों पैर हैं इन पे वेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, बराबर आपका वजन जाना चाहिए। आपका जो हिप, नी और एंकल एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। आपके जो लेग्स हैं शोल्डर की विड्थ में ओपन होने चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा ओपन होने चाहिए, ना बहुत पास में होने चाहिए। शोल्डर की विड्थ में आप अपने बॉडी को खोल सकते हैं, तो इससे एक बैलेंस अच्छा बना रहेगा। अगेन सेम रिपीटेशन कैन बी परफॉर्म with the inhalation and calm down. Now open the legs as you told it, more than the shoulder width. Now open the palms and you can go for the side bending like this way. Go as you told it. With the exhalation go the side way, come to neutral with the inhalation. Now go the side way with the exhalation. You will say that we do in the exercises also. What is the difference between in this? Yes, you are performing in the very gentle way, and with the breathe, you are aiding the breathing. With the exhalation, go sideway. With the inhalation, come to the neutral. With the exhalation, go sideway. Come to the neutral. Relax. Now we will perform the spinal rotations. Keep one shoulder on the one hand on the opposite shoulder and अपने बाएं हाथ को दाएं कंधे पे रखिए and now you go for the rotation. With the exhalation, सांस निकालते हुए आप पीछे की तरफ रोटेट हुए, then come to the neutral, बीच में आए, फिर आप जो है अपोजिट शोल्डर पे अपने हाथ को रखें और सांस निकालते हुए पीछे की तरफ रोटेट। Come to the neutral. Again, go. Come to the neutral. सांस निकालते हुए जाएं, सांस लेते हुए वापस आए। We say this Kati Chakrasana.
spinal twisting exercise. So we have done the forward bending, backward bending we are going to perform in the next time. Now rise the both, keep apart the legs in the more than shoulder width for your proper balancing. Weight should be equally distributed. दोनों पैरों पे आपका वजन बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बॉडी एक इरेक्ट पोजीशन में होना चाहिए. Then rise the both hands and slowly with the exhalation go downside as you can go. Come to the center. Stretch up, ऊपर खींचे अपने बॉडी को. With the exhale करते हुए नीचे की तरफ जाए as you can go. Inhale करते हुए वापस से ऊपर आए. Always do in your limit. Do not to strain your back. As you go, as you comfortably can go, do that. Simultaneously go downside with the exhalation. Come to the center. Relax. Sit down. You can lay supine. अपने बेली पे आराम से लेट जाइए. स्पाइन पे आप लेट जाइए. सीधे लेट जाइए आराम से. Yes. रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल आराम से. Lay down, relax. Be aware of your breath. Be aware of your breath. सांस लीजिए. जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका जो पेट है वो फूल रहा है. जैसे हम गुब्बारे में फूंक लगाते हैं तो गुब्बारा फूलता है. सेम वे वाइल इनहेलेशन आपका जो बेली है वो ऊपर आ रहा है. सांस निकालते हुए आप बेली नीचे की तरफ जाएगा. जब सांस निकाल रहे हैं तो आपका पेट पूरा स्पाइन की तरफ जा रहा है. अपनी सांसों को आप ऑब्जर्व करें. अपने लेग्स को स्ट्रेट कर लीजिए. रिलैक्स हो जाइए. ले ऑन द बेली. उल्टे लेट जाइए आप आराम से. हाँ, आराम से उल्टे लेट जाइए. अपने दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखिए. हाँ, आपके हैंड्स, यू हैव टू प्लेस योर हैंड्स अंडर योर शोल्डर्स. नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द भुजंगासना. बैंड द एल्बोस. गुड एल्बो को मोड़िए एंड दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखिए. सांस लेते हुए आप अपने नेक को राइज कीजिए. यस, राइज योर नेक. राइज योर नेक. वेरी गुड. सांस निकालते हुए नेक को नीचे रखिए. यस, राइज योर नेक अगेन with the inhalation. Very good. Now come down. Initially only rise your head. Yes, rise up with the inhalation. Go with the exhalation downside. Right. Again with the inhalation, rise up. Now with the exhalation, go down. After the some days, when you have increases your flexibility, you can rise your upper chest also. But that time your navel should touch the ground. Navel, नाभि जो है वो ग्राउंड के टच में रहेगा. नाभि से ऊपर का हिस्सा आप पूरा उठा सकते हैं. राइज अप नाउ अगेन. यस, उठिए और उठिए आप. वेरी गुड. सांस निकालते हुए नीचे की तरफ जाएं. यस, सांस लेते हुए उठें. सांस निकालते हुए नीचे की तरफ जाएं. यू कैन कीप दिस. सांस लेते हुए उठें. हेड को पीछे की तरफ टिल्ट करें. सांस निकालते हुए आगे जाएं. गो डाउन कंप्लीटली रिलैक्स. रिलैक्स कर दें अपने शोल्डर्स को. रिलैक्स, लूज छोड़ दें. शोल्डर्स को थोड़ा जो है, पाम्स को आप शोल्डर के नीचे रखें. यू शुड कीप योर पाम्स अंडर योर शोल्डर्स. एल्बो शुड बी पॉइंटेड पोस्टीरियरली. सांस लेते हुए आप उठें आराम से. ब्रॉडन द चेस्ट. विद द एक्सहेलेशन, इनहेलेशन कम अप. विद द एक्सहेलेशन गो डाउन. डू इन योर लिमिट till the neck downside. Now inhale, rise up the head, rise up the upper chest. But while performing this, your navel should not get up from the ground. Navel should touch. Yes. With the inhalation, come up.
With the inhalation, come up. Navel should touch to the ground. Don't lift the navel. नाभि नहीं उठना चाहिए. Go down. Relax. Now मजारी आसन, आप जो है केट एंड कैमल पोज जो हम कहते हैं, जिसे आप अपने घोड़े बन जाइए. बिकम द घोड़ा. क्वाड्रीपॉड पोजीशन हम इसे कहते हैं. तो इसमें जो है आपके जो हैंड्स हैं दैट शुड कम अंडर द शोल्डर, नीज शुड कम अंडर द हिप्स. दोनों लेग्स को आप रिलैक्स रखिए, अपार्ट रख लीजिए. नाउ आई एम परफॉर्मिंग हियर. सांस लेते हुए गर्दन को उठाएं और स्पाइन को, लंबर स्पाइन को नीचे की तरफ लेके जाएं. सांस लेते हुए, सांस निकालते हुए गर्दन को नीचे लाएं और स्पाइन को पूरा ऊपर की तरफ उठाएं. जैसे ऊंट का, कैमल का हम्प होता है, लाइक दैट वे यू विल मेक अ हम्प ऑफ द स्पाइन. With the inhalation, come up. With the exhalation, go down. जैसे सांस निकालते हैं नेक को नीचे लेके जाना है, स्पाइन को ऊपर लिफ्ट करना है. लिफ्ट अप द स्पाइन. गो डाउन. लिफ्ट अप द स्पाइन अप. जो जैसे कैमल का हम्प बनता है उस तरीके से आपको हम्प बनाना है. नो इनहेल करते हुए सांस लेते ऊपर उठाना है. दिस टाइम आपका जो बैक है वो नीचे की तरफ जाए. सो इट्स क्रिएट द वेरी गुड फ्लेक्सिबिलिटी in the spine. Inhale, exhale. This is a differentiation that while performing these yogic exercises, you do not exert your body. You feel the vitality, new strength. Completely merge हो जाइए, अपने बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए ग्राउंड पे. Become aware of your body, become aware of your surroundings. Bring your attention towards your spine, towards your whole body. Become aware of your breath. कर सकते हैं. सन की जो ये एनर्जी है इसको डायरेक्टली हम अपने बॉडी में रिवील कर सकते हैं, ले सकते हैं. एंड वेरी सिंपल तरीका है इसको लेने का. मॉर्निंग टाइम ड्यूरेशन में कोई भी इसे प्रैक्टिस कर सकता है. इसकी प्रैक्टिस में 2 फेज़ है. पहले फेज़ में हम बॉडी को प्रिपेयर करते हैं सन रेज को अपने बॉडी में रिस्टोर करने के लिए. एंड सेकंड पोजीशन में, सेकंड में हम जो है सन जो है गॉड या सन को हम जो है प्रे करते हैं और जो सन रेज है उनको अपने बॉडी में रिस्टोर करते हैं. तो वी आर गोइंग टू परफॉर्म द फर्स्ट फेज़. इन फर्स्ट फेज़ वी प्रिपेयर द आइज इन द फर्स्ट प्रैक्टिस. इन द सेकेंड प्रैक्टिस वी क्लोज and open the eyes. In the third we do the navel breathing, right? So we are going to do these 3 practices. फर्स्ट प्रैक्टिस में क्या करना है, आपको अपने अपर आईलिड को अपने जो इंडेक्स फिंगर है इससे रब करना है. रब करते वक्त आपका आईलिड, आपकी जो भौरे की जो आईलिड है और वो जो आपकी फिंगर है ये एक यूनिट होनी चाहिए. आप आँख को नहीं मसलेंगे, आप जो आईलिड पे हाथ रखेंगे और आईलिड जो है आपके ये आइज़ पर सिंपल मसाजिंग करेगा. आपको आई को प्रेस नहीं करना है, सिंपली मसाज करना है अपने आइज़ को. आइज़ क्लोज रहेंगे. दूसरी आप सुन लीजिए, पहले देख लीजिए. सेकंड प्रैक्टिस में जो इंफीरियर आई लीड है, नीचे वाली आई लीड है, इसके ऊपर अपने फिंगर्स को रखेंगे और इसको एक यूनिट मान के आप मूव करेंगे अप एंड डाउन 5 टाइम्स. ठीक है. थर्ड प्रैक्टिस में आप एक आईलिड के ऊपर उंगली रखेंगे और नीचे वाली आईलिड पे रखेंगे और दोनों आईलिड्स को साइमल्टेनियसली आइज पे मसाज करेंगे, पर कंप्रेस नहीं करेंगे. शैल वी स्टार्ट? डू. अपनी एक फिंगर को अपर वाली जो आईलिड है इस पे रखिए और सिंपली आप इसे मूव कीजिए अप एंड डाउन 5 टाइम्स. अपने फिंगर को रब मत कीजिएगा, आपका जो आईलिड है वो मूव करेगा. सिंपली मसाज द आईज. डू नॉट कंप्रेस द आईबॉल. अपने आईबॉल को कंप्रेस मत कीजिएगा, दबाइएगा मत. लाइट आइज, लाइट हैंड से आप इसे अप एंड डाउन मसाजिंग कीजिएगा. ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्. ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्. ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्. ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि
तन्नो सूर्य प्रचोदयात्. Next, relax. Now the Utthana Mudra, in which you extend your legs in front of the body and keep your hands backside your spine. Relax. In this, you inhale and exhale till your belly. इसमें जो है, इस प्रैक्टिस में एक्सहेल करने के बाद में आप अपने एनस को टाइट करते हैं और साइमल्टेनियसली आप अपनी टंग को टर्न करके और अपने प्लेट्यू की तरफ टच कर सकते हैं इफ़ यू फील कंफर्टेबल. एक्सहेल करें, रिलैक्स. इनहेल करें, सांस लें, सांस छोड़ें. सांस छोड़ने के साथ में आपने एनस को टाइट कसें. देन रिलैक्स. सांस लें, सांस निकालते हुए अपने बेली को स्पाइन की तरफ लेके जाएं और अपने एनस को टाइट करें. रिलैक्स. लास्ट वन प्रैक्टिस, इसमें आप जो है सन को आर्क देते हैं. यू कीप योर ओपन द palms like this way in towards your navel. Navel is the center of Manipur chakra. This is the center of sun in the body. We have the digestive fire in our body, in the stomach, and from that core heart of your practice, of your soul, of your body, you are giving the obeisance to the sun. Om Adityaya Vidmahe Sahasrakirnaya Dhimahi Tanno Surya Prachodaya. Om Adityaya Vidmahe Sahasrakirnaya Dhimahi Tanno Surya Prachodaya. Om Adityaya Vidmahe Sahasrakirnaya Dhimahi Tanno Surya Prachodayat. Om Adityaya Vidmahe Sahasrakirnaya Dhimahi Tanno Surya Prachodayat. Now we'll chant the prayer. Just a minute. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kasyit dukkha bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Now relax in the Savasana. Then after we have completed the posture. After this, lay down. Now after this you have to supine and relax. Later on you can get up. So main precaution is that you should do in your limit and never gaze directly to the sun. Thank you.